what causes soil pollution? Land pollution. Sources of soil pollution is the dumping of garbage. Whatever the solid waste, solid waste without getting segregated and treated, we just dump it on the land. So what will happen? Slowly all the chemicals, all the waste materials will affect the land. Then agriculture. When we use chemical fertilizer, pesticide, that affect the soil condition. अब जैसे Dr. M.S. Swaminathan, he died at the age of 98 years. One of the criticism against Dr. M.S. Swaminathan was this problem of the green revolution. What was the problem of green revolution? Too much of fertilizer that has affected the soil quality and soil pollution. Then he came out with a new idea, evergreen revolution, to take over the negative side of green revolution. But what is the good thing of green revolution? That we were able to produce more food grains. That is required for food security. That is what his achievement is there. But what is the fact here? Today, modern farming, whatever way we do, that affect the quality of soil. Mining, I have mentioned yesterday, mining affect the land, right? Agriculture is one thing, mining also affect the land and the soil there. Not only that, even the plastic. Nowadays, plastic is everywhere. Like for example, this panel is made of plastic. This camera, that outer part is made of plastic. And plastic comes in different forms. Even this one, outer part, that is a plastic. So we are using so much of plastics. But what is a very big challenge? Recycling or reuse. So what happens ultimately? It get dumped somewhere outside. So that is going to affect the soil. है ना? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अर्बन एरियाज में. इसीलिए मैंने क्लास में बताया था कि आज के टाइम में क्या होता है, बड़े बड़े महानगरों के बाहर कूड़े का पहाड़ हो. जैसे अभी हिंदू पेपर में क्या कवर हो रहा है? गाजीपुर. Where is Gazipur? Outside the Delhi. You have a landfill site, and that is a big problem now. Aam Aadmi Party and the Delhi government that is working to take care of that dump of the garbage there. UPSC main exam question आया हुआ है. How do we manage solid waste in India? ठीक है. तो what is one aspect that is the cause of the pollution? Like I've given here, plastic bag, industrial sources, dyes, acid, and all this. Then agriculture sources, and then control of soil pollution. How can we control soil pollution? कोई भी solution कैसे हम ढूंढते हैं? उसका तरीका क्या है कि हमें each problem को लेना होगा. अब जैसे मैं बताता हूँ गार्बेज. अब ऐसा समझ, अभी उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं गार्बेज का प्रॉब्लम जो है. तो गार्बेज का प्रॉब्लम कैसे हम करेंगे सॉल्व? हाउ डू वी सॉल्व गार्बेज प्रॉब्लम? रिसाइकलिंग प्लांट. ओके. इन यूपीएससी मेंस एग्जाम यू विल ऑलवेज बी आस्क्ड टू गिव रेमेडी और सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम. वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लैंड पोल्यूशन इज द गार्बेज. टुडे द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW, व्हाटएवर सॉलिड वेस्ट इन एग्रीकल्चर फील्ड, दैट इज गेटिंग मोर क्वांटिटी. तो यहाँ सबसे पहला ये याद रखना है, जब भी सॉलिड वेस्ट का आता है तो व्हाट इज फर्स्ट थिंग? जब भी कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट है, इट ऑलवेज वर्क ऑन दिस वन. पहला 3R है. व्हाट इज ट्रिपल R? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. जो हम यूज करते हैं तो हमें ऐसा रखना चाहिए कि हम जितना रिड्यूस कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं. अगर अंत में नहीं होता तब वो रिसाइकल में जाएगा. तो यहाँ पर ये 3R प्रिंसिपल जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है. ये कब है, कहाँ पर है? इंडिविजुअल लेवल. वी एज एन इंडिविजुअल लेवल, देन सोसाइटी लेवल. सो वन कम्स इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, एंड देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल वेदर इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड ऑल्सो अडॉप्ट दिस 3R. ठीक है. ये पहला चीज आता है कोई भी ऐसा सॉलिड वेस्ट को हमें सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्या आता है? अब जैसे कि सॉलिड वेस्ट विल बी 3 टाइप्स. इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया. वन विल बी बायोडिग्रेडेबल, विच इज डिग्रेडेबल, विच कैन बी ब्रोकन डाउन, decomposed. These are organic matter. Second is non-biodegradable, which cannot be broken down, which cannot be they accumulate in the environment. What it does, it remains in the environment for long time and cause pollution. And third जो होता है hazardous. मैं इसी में example देता हूँ. Solid waste में electronic waste, mobile phone, laptop, computer, sometimes the light bulbs, electronic items, AC, जो भी हम use करते हैं, TV screen, all these are electronic items. And what happens when they become defective or their life cycle is over? But what happens in such kind of a system there will be certain type of chemical, there will be certain type of thing which may go to human body, will cause problem. So these are hazardous. Sometimes biomedical waste है ना, syringes, जितने भी चीजें होती हैं. अब आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ आजकल क्या हो रहा है. बायोमेडिकल वेस्ट घर के अंदर भी जनरेट होता है. हमारे दिमाग में क्या चलता है, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब हॉस्पिटल, केवल नर्सिंग होम, हॉस्पिटल की बात. अब घर के अंदर कैसे होता है? दवाइयाँ, ठीक है, ओल्ड एज होते हैं घर में तो मेडिसिन होते हैं ना, कई बार क्या होता है, एक्सपायर मेडिसिन होता है. अब आजकल क्या हो रहा है, राइजिंग डायबिटीज केस. आपने देखा ग्लूकोमीटर, वो देखा स्ट्रिप वगैरह होता है ना, दे प्रिक एंड वो डालते हैं. तो वो सारी चीजें ना, ये सब कहाँ से है? मेडिकल ना. तब अब घर के अंदर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है. और ये सब क्या होता है, हजार्डस होता है. हम ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते, इसके लिए रूल होता है. और ये आपको पता है. अब इसी में क्या होता है, गीला कचरा, सूखा कचरा, ड्राई एंड वेट. यू हैव सीन दैट ना, सब जगह लगा है ना, आधार पुना वाला लिखा हुआ है ना ऊपर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सभी जगह लिखा हुआ है. तो रोड के साइड में लगाया गया, यू हैव टू डंप व्हाटएवर देयर. घर में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी आता है, गार्बेज होता है ना, कलेक्ट करते हैं. व्हाट विल हैपन इफ यू जस्ट थ्रो इट आउटसाइड? बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन हियर, वो सब जगह मैं देखता हूँ, दिल्ली में भी देखता हूँ. अब कोई कुछ नहीं करता है, जबकि उसमें फाइन लगना चाहिए. इट्स अ प्रोविजन ऑफ फाइन टू बी लेविड बाय म्युनिसिपैलिटी, कि बाहर कचरा जो फेंकते हैं हम लोग, तो वहां पर ये चीज है. तो ये बायोडिग्रेडेबल ये चीज. अब इसमें ये आता है वन एस्पेक्ट, दिस वन जो बायोडिग्रेडेबल है, यू नो दिस वन, कंपोस्टिंग. व्हाट इज कंपोस्ट? व्हाट इज कंपोस्ट? कंपोस्ट खाद बनाते हैं ना, कंपोस्ट क्या, मैन्योर. कंपोस्ट बिन होता है, सॉइल होता है, एंड देयर सर्टेन टाइप ऑफ फंजाई, सॉइल फंगस एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ऑल द फूड मटेरियल. जैसे कि बहुत सारे हॉस्टल्स है ना, हॉस्टल में, होटल में, रेस्टोरेंट में, बाद में क्या होता है, खाना बर्बाद हो जाता है. तो वो क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट मिलता है बाजार में, कंपोस्ट बिन आप खरीद के लगा सकते हो. अब जैसे आप ये सोचो, पुणे में इतने सारे होटल रेस्टोरेंट है. अब ऐसा तो नहीं सारा खाना खत्म ही हो जाता, खत्म होता है क्या, वो ज्यादा बनाते हैं ना, फिर वो खाने क्या होता है, फ्रिज में रखते हैं. कितना दिन रखेंगे, 3-4
दिन बाद तो नहीं रख सकते, उनको डंप ही करना होगा ना। तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन अडॉप्ट कंपोस्ट। और पता है इसका मार्केट इंपॉर्टेंस है भाई, वॉट एवर कंपोस्ट यू मेक एट होम और इन हॉस्टल यू कैन सेल इन द मार्केट। लाइक यू नो समटाइम गार्डन नर्सरी बहुत महंगा आता है कंपोस्ट का पैकेट है, कितने में मिलता है पैकेट, 10 kg का, कभी नहीं मिलता बाजार में कंपोस्ट वगैरह जो है, महंगा आता है, 100-200 रुपीज दाम होता है। घर में लोग कभी गार्डन वगैरह करते हैं तो वो डालते हैं कंपोस्ट, तो महंगा आता है वो, तो ये एक चीज कर सकते हैं कंपोस्टिंग। अब मुझे आप बताओ कंपोस्टिंग के अलावा व्हाट मोर द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस वन, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सिटी कंपोस्ट पॉलिसी, जस्ट राइट दिस वन, सिटी कंपोस्ट पॉलिसी। एट द सिटी लेवल वी कैन मेक कंपोस्ट एंड दैट इज लिंक्ड विद मार्केट, वी कैन सेल कंपोस्ट, फार्मर्स कैन बाय कंपोस्ट, ठीक है। देन कमिंग टू अनदर थिंग हियर, सॉलिड वेस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट आई एम नाउ ब्रिंगिंग हियर, दोज व्हिच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल hazardous, तो उसके लिए क्या किया जाता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड वेस्ट टू एनर्जी, व्हाट इज कॉल्ड दैट, WTE, राइट हियर, वेस्ट टू एनर्जी। व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूं। मैं WTE टेक्नोलॉजी क्या है, बर्न, जला देना, ठीक है। उससे क्या मिलेगा, हीट, हीट से क्या होगा, वाटर इनटू स्टीम, वेयर द स्टीम विल यूज टरबाइन, टरबाइन लिंक टू जनरेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। खुले जला देना, उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, उससे बेटर क्या है, बर्न इनटू WTE प्लांट। वी हैव WTE प्लांट्स इन इंडिया, जस्ट फाइंड आउट इन पुणे वेदर यू हैव WTE प्लांट, दिल्ली में है ना, इसको ऑपरेट किया जाता है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, राइट, प्लांट PLANT। एंड व्हाट इज गुड थिंग हियर, इट नॉट ओनली टेक केयर ऑफ कचरा और वेस्ट गार्बेज बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ, बट ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, WTE प्लांट, PLANT, दैट वे वी कैन टेक केयर ऑफ द सॉलिड वेस्ट। ये सब पॉलिसी के अंदर किया जा रहा है, तभी लैंड पोल्यूशन को रोक पाएंगे ना, कि वी टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ गार्बेज। प्लास्टिक के लिए फिर अलग है, प्लास्टिक के लिए क्या बेटर तरीका है, रिसाइकलिंग, रिसाइकल करने, जैसे प्लास्टिक का जो है, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। एंड इफ यू रिमेंबर आई हैव मेंशन्ड व्हाट इन द क्लासरूम, यूनाइटेड नेशंस हैज नाउ ड्राफ्टेड, UN हैज नाउ ड्राफ्टेड कन्वेंशन, ट्रीटी कंट्रोल प्लास्टिक्स वर्ल्ड वाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आर यू गेटिंग दिस। अब इंटरनेशनल लेवल में ट्रीटी होंगी जो प्लास्टिक के यूज को रेगुलेट करेगा वर्ल्ड वाइड, वो सारा रेडी हो चुका है। हो सकता है अगली बार जब कॉन्फ्रेंस हो तो वहां पर प्रपोज किया जाए, गवर्नमेंट विल साइन एंड रेटिफाई। हाँ, वी शुड हैव ऑल्टरनेटिव, नहीं उसमें दिया जाएगा, व्हेन रिमेंबर दैट शी हैज आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी मस्ट हैव ऑल्टरनेटिव। तो उसमें क्या ऑल्टरनेटिव है, विद इन दैट कन्वेंशन इट विल क्रिएट इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर फाइनेंस फॉर न्यू ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी वगैरह, वो सब डेवलप किया जाएगा, ठीक है, वो सब सारी चीजों को डेवलप किया जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दैट? ओके, नाउ लेट्स लुक एट WTE, वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है, आई एम राइटिंग द सीक्वेंस। क्या होता है इसमें, वी बर्न इट, जो भी गार्बेज है, दिस वेस्ट इज देयर, दैट इज बर्न। सो व्हेन वी बर्न इट, तो व्हाटएवर हीट इज देयर, दैट गोज टू द स्टीम जनरेशन, वाटर दैट प्रोड्यूसेस steam generation, and then this will be fed into turbine. So turbine generator, mechanical to electrical. Only one thing we have to take care, this garbage, this waste which is burned is after segregation. ये नहीं कि सारा डाल दिया तो हो गया, इसमें फिर हटाया जाता है, अलग क्या है। एक मेथड ये है, म्युनिसिपैलिटी क्या करता है, म्युनिसिपैलिटी एक वर्ड आता है इंसिनरेशन बोलता है, ठीक है ना, इंसिनरेशन, इंसिनरेशन मतलब बर्निंग। सो इंस्टेड ऑफ बर्निंग इन ओपन वी मस्ट यूज इन द WTE प्लांट। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। और एक और चीज होता है which you all know that another way to take care of solid waste is the sanitary landfill. Now what is sanitary landfill? Is dumped under a pit, inside a pit, PIT pit, and covered. गड्ढा बनाते हैं, फिर डाल देते हैं, उसको कवर करते हैं। ऐसे नहीं कि गड्ढे बना के डाल दिया, पहले वो लेयर ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं, लेयर ऑफ शीट्स वगैरह लगाए जाते हैं, उसको रखा जाता है, फिर वो स्लोली क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। लेकिन उसके भी कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है, अगर वो लेयर ब्रेक कर गया तो देयर विल बी सम लीकेज। एक वर्ड होता है लीचेट, बोलते हैं लीचेट, वो जाएगा ग्राउंड वाटर में कसेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है WTE, उसको बर्न कर देना है ना, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये पार्ट को ध्यान में रखना। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कैन यू गिव एनी एग्जांपल, एनी प्लेस? नोएडा, बट महाराष्ट्र का बताऊं, पुणे में है ना ये IT पार्क। क्या क्या होता है इकोनॉमी, मुझे आप इकोनॉमी बताओ बस, देन आई विल कम टू द एनवायरमेंट पार्ट। व्हाट इज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? इज इट ट्रीटेड एज अ फॉरेन एनक्लेव, ऑल्दो इट इज विद इन द कंट्री बट कंसिडर्ड फॉरेन लैंड। व्हाट गवर्नमेंट डू हियर, टैक्स ब्रेक, है ना, उनको सारा छूट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके ऑफिसेस होते हैं, कई बार फैक्ट्रीज वगैरह होंगे, यही SEZ है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी सॉलिड वेस्ट होगा ना। तो व्हाट विल डन, दिस ऑल सॉलिड वेस्ट विल बी कलेक्टेड एट अ पर्टिकुलर प्लॉट एरिया होता है। सपोज इट इज अ फैक्ट्री, तो वहां भी होगा। सपोज इट इज अ कॉर्पोरेट ऑफिस, वहां से भी होगा। तो वो एक प्लॉट में रखना होगा जहां पे सेग्रीगेशन, मतलब पहला कलेक्शन, सेग्रीगेशन, एंड देन दिस विल गो फॉर डिस्पोजल। 5 प्लॉट रखना होता है। कितना रखता है, 5 प्लॉट्स। तो विजुलाइज करना है, कोई भी चीज को विजुलाइज करना है। आई रिमेंबर वन दिस सिप्स है, कहा है सिप्स मुंबई अंधेरी के पास में, साकीनाका एंड दैट एरिया, सिप्स वहां पर जगह है। तो वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अलग से रखते हैं वहां पर। आर यू ऑल गेटिंग दैट? कितना प्लॉट रखना है देखो आप, व्हाट इज गिवन अंडर द रूल, 5% ऑफ टोटल एरिया। सपोज व्हाट एवर टोटल एरिया 5%, वहां पर क्या होगा, सब गार्बेज जाएगा, ठीक है। और 5 प्लॉट, 5 प्लॉट ऑफ शेड्स फॉर रिकवरी एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी, ये कंपल्सरली SEZ में बनाना पड़ता है। ये कहां पे काम आएगा आपको, ये सारे पॉइंट्स, मेंस आंसर राइटिंग, व्हेन यू राइट मेंस आंसर तो देयर यू हैव टू प्लेस, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे।